Assalamu alaikum class, how are you? How was your day? I'm also good, thank you. Can you see the slides on your screen? Good. Okay, so today we will start with Unit 6 of course code 9382 Functional English, that is expressing preference and intention. सो प्रेफरेंस ये कि आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं यानी तरजीह दे रहे हैं, और इंटेंशन यानी आपका इरादा क्या है या आपकी नीयत क्या है या आप क्या चीज़ कैसे करना चाह रहे हैं. So let's have a look at the structures that help us to express preference and intention. So when we want to express preference, अपनी चॉइस हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे फूड में चॉइस, क्लॉथ्स में चॉइस, या कलर्स, म्यूज़िक, बुक्स और फिल्म्स या पीपल में चॉइस, तो हमारा उससे मतलब क्या होता है, आई प्रेफर यानी ये मेरी चॉइस है, ये चीज़ मुझे पसंद है, या आई फेवर दैट थिंग. इंटेंशन का मतलब इरादा होता है, यानी क्या चीज़ आपकी, आपका इरादा क्या है या आप किस इरादे से या किस नीयत से आप बात कर रहे हैं. यूनिट 5 जो है वो हम यूनिट 6 के बाद देखते हैं, उसके कोई एक आध थोड़ा सा ही पोर्शन रहता है, अदरवाइज इट्स कंप्लीट. So we will have a look at a few portions that are left. तो जो हमारी ये प्रेफरेंसेस हैं उनको हम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई प्रेफर अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस, सिंपली हम प्रेफर का वर्ड यूज़ कर लें. आई वुड रादर हैव फ्रूट फॉर लंच देन अ फुल मील. आई वुड रादर, ये दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम अपनी प्रेफरेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई वुड रादर और फिर आगे देन लगा के दोनों चॉइसेस के दरमियान. Well, it directly asks your question. I prefer cotton dress in summers. We will discuss assignment tomorrow. Okay, now we will read the given paragraph and then we will see how preferences are expressed. The importance of information technology, that is IT, and the flexibility it provides has made it a popular career choice for most Pakistani women. A large number of educated women prefer taking up IT as profession. Why this preference for IT? Well, a recent survey has proved that women have shown a great preference to IT and are inclined towards choosing different fields of IT where they have chances of proving their creativity. So दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, are inclined towards. Women select IT profession because they think it also widens their horizons and suits the demands of a dynamic and fast changing world. So select, एक और word. Women believe that it is the best alternative to office jobs that block their creative growth. Best alternative, एक और structure. Women of Pakistan have made a choice in favor of IT and appreciate that this can be the best profession that can allow them opportunities for personal and professional development. Best alternative, then can allow, made a choice, ये भी एक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको, जिनके थ्रू आप अपनी प्रेफरेंस या किसी और की प्रेफरेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं. The government also favors and supports women who want to choose IT as profession. Favors and supports, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप प्रेफरेंस को शो कर सकते हैं. And has approved it as an excellent medium of growth for women. तो has approved, इससे भी प्रेफरेंस या चॉइस शो हो रही है. सो प्रेफरेंस के लिए हमने जो एक्सप्रेशंस इस पैसेज में देखे उसमें एक क्या है, प्रेफर, हैज़ प्रूव्ड,
inclined towards choosing, women select, believe that it is the best alternative, have made a choice. तो इस पैसेज में ये स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हुए हैं. सो अब ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आपने अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस लिखने हैं. इसी तरह के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स और पेपर्स में भी आते हैं. अ हॉलीडे एट द सी साइड और इन द माउंटेन्स. I would rather spend my holidays at the seaside than in the mountains. So, traveling by car or by public transport. Make a sentence. And express your preference. What would you have? Traveling by car or by public transport. Slide number 6. Rather than by public transport. बिस्मा इस तरह आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगी. I prefer traveling by car rather than by public transport or instead of public transport. Then going to the cinema or to the theater. Number 3. I prefer traveling by car. I traveling नहीं. ओके अब नंबर 3 पे आ जाए. गोइंग टू द सिनेमा और टू द थिएटर. बाय कार, फ्रॉम कार नहीं. वेरी गुड है ना. आई प्रेफर गोइंग टू द थिएटर इंस्टेड ऑफ सिनेमा. रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक और वॉचिंग टेलीविजन. नंबर 4. I prefer reading an interesting book instead of watching television, or you can also say I would rather read an interesting book rather than watching television. Very good, Bisma. Learning vocabulary or grammar. How would you express your preference for learning vocabulary or grammar? Interested नहीं, interesting book. I prefer to focus on vocabulary rather than learning grammar instead of vocabulary. Good. Or you can also say I would choose learning vocabulary instead of grammar. Okay, then comes intention. So, what is the definition of intention? Intention is basically determination to act in a certain way. यानी जब आप किसी certain way में कोई काम करने का इरादा करते हैं, नियत करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? Intention कहलाता है. So, an intention is a goal or vision that guides your activities, thoughts, attitudes and choices. यानी जो आपकी intention होती है वो एक ऐसा गोल होता है, एक ऐसा विजन होता है जिसकी अकॉर्डिंगली आप अपनी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंगली सोचते भी हैं, आपके एटीट्यूड्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं एंड ऑब्वियसली आपकी चॉइसेस भी उसके अकॉर्डिंग होती हैं. सो इंटेंशन जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं या किस तरह से करते हैं? आई इंटेंड टू गो टू गिलगित. सबसे पहला तो ज़ाहिर है इंटेंड ही आ गया इंटेंशन के लिए. आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गिलगित. I have decided to go to Gilgit. Attitude रवैया. My intention is to go to Gilgit. It's my intention to go to Gilgit. So intend, thinking of, intend to, thinking of, decided to, intention is, intention to. ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम इंटेंशन शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Yes, Fatma, your sentence is correct. So expression और कौन कौन से हम याद कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं? I am going to study English. I would like to study English. Yes, I think I will go to market.
I am planning to go abroad for studies. I have decided to apply for a new job. I'm thinking of applying for a BS degree. I intend to go to my friend's house. My intention is to help him in his studies. Perhaps I will buy a new phone. I plan to buy a new phone. Good. Maybe I will buy a new dress. Maybe I will give him a gift on his birthday. So, all these are different ways of expressing intentions and obviously preferences. देन ऑब्वियसली जब आप एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को तो आप उसी चीज़ के बारे में दूसरों से पूछते भी हैं, यानी आप दूसरों के प्लान्स प्रेफरेंसेस और इंटेंशंस के बारे में पूछते भी हैं. लाइक व्हाट विल यू डू टुमारो, तो आप सामने वाले का प्लान पूछ रहे हैं. वी विल ट्राई टू मेक फॉर्चून कुकीज़. Will you go fishing tomorrow? Yes, I'm going to go fishing. What are we going to do tomorrow? We are going to practice baking cookies. I would rather stay at home. What would you like to do? I would like to cook rice. यानी आप सामने वाले की प्रेफरेंस भी पूछ सकते हैं, आप सामने वाले का प्लान भी पूछ सकते हैं, आप सामने वाले की इंटेंशन भी पूछ सकते हैं. अब वो तो आप पूछ रहे थे, आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? लाइक व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट? आई विल बी स्टेइंग एट होम. व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट? आई विल बी कॉलिंग ऑन फ्रेंड्स. कॉलिंग ऑन का मतलब फ़ोन पे कॉल करना नहीं होता. कॉलिंग ऑन मीन्स किसी के घर जाना. रादर यानी इसकी जगह, इसके बजाय. व्हाट विल यू डू इन द समर? आई विल वर्क हार्ड. व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द समर? आई एम गोइंग टू रीड अ लॉट. So this is how you can express your plans and you can express your intentions. Okay, now we have some questions, and in these questions you are supposed to Tuba, what is 11? Okay, number of slides. Number of slide is 12 now. So intentions in answer to given questions. Mr. Shirazi Salim, what do you intend to do this weekend? So make a sentence for Salim. I will stay at home. Good. I am thinking to go out of the city. Helping verbs के बगैर sentence तो नहीं बन सकता. I am thinking of making some sweet dish. Good. Walid, what do you want to say? To go out of city. I would like to make tea. Okay. Quiz on this weekend. Good. To go watch a movie. Good. To go to my grandpa's house. My friends this weekend. Okay. Dost Muhammad, what do you intend to do this weekend? वो भी हो गया. Khurram, what do you intend to do this weekend? So all of these are basically for weekends. Okay, so I hope intentions and preferences are clear. If you have any questions, you can ask. I want to go to Murray. You will use to twice.
I would like to do party. Fine. All right, then let's start with simple future tense. Simple future tense is basically the first and most frequently used future tense. जब भी हम किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो हमें लगता है कि फ्यूचर में होगा, तो वी यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस. What would you like to eat and drink? तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. एनीथिंग दैट वी बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर. हम अपनी फ्यूचर की जो इंटेंशंस होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं, उनको शो करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. अब जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं. एक जिसमें हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, दूसरा जिसमें हम इज एम आर के साथ बी गोइंग टू यूज़ करते हैं, यानी और फिर उसके साथ हम फ्यूचर का टाइम लगा देते हैं. जैसे इफ़ आई से आई विल गो टू द मार्केट एंड आई कैन ऑल्सो से आई एम गोइंग टू द मार्केट टुमारो. सो सिर्फ टुमारो ऐड कर देने से वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा? फ्यूचर में. आई एम गोइंग टू गो टू द मार्केट टुमारो. तो गोइंग टू गो जो है वो लगाने से और उसके साथ इज एम आर लगाने से और आगे फ्यूचर का टाइम लगाने से वो सेंटेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. और दूसरा जाहिर बात है वो बहुत सिंपल सा बेसिक सा है कि आप विल लगाएंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगा देंगे. दैट्स इट. अब ये जो दोनों फॉर्म्स हैं उनको हम अक्सर इंटरचेंजेबली भी समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स यूजली टोटली डिफरेंट होते हैं. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ यानी गोइंग टू के साथ फ्यूचर बनाना और विल के साथ फ्यूचर बनाना दोनों डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होते हैं. वो विल जो है और गोइंग टू वो स्पेसिफिक टाइम्स को रेफर करते हैं. लाइक इफ आई से आई विल फिनिश माई होमवर्क इन एन आवर, आई एम गोइंग टू फिनिश माई होमवर्क इन एन आवर. आई एम सो हंग्री, आई विल ईट द होल वाटरमेलन. आई एम सो हंग्री, आई एम गोइंग टू ईट द होल वाटरमेलन. दोनों ही जो हैं वो फ्यूचर हो गए. विल इज यूज टू एक्सप्रेस अ वॉलंटरी एक्शन, यानी जो आप सोच समझ के जानबूझ के करें इंटेंशन के साथ. यानी विल किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है? इंटेंशन को, इरादे को. और जैसा कि हमने पहले मॉडल वर्ब्स में पढ़ा था कि विल जो है वो 100% सर्टेनिटी को शो करता है. सो जब आप फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं तो आप उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कोई भी इंसान सोच समझ के या इरादे के साथ करे. ये फ्यूचर के हिसाब से कैसे हो गया? आपने तो वॉज लगाया हुआ है. वॉज लगेगा तो पास्ट हो जाएगा. आई विल मेक सम सैंडविचेस. आई एम सो टायर्ड, आई एम अबाउट टू फॉल asleep. आई विल गेट यू सम कॉफ़ी. विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस. जब आप वादा करते हैं और आप 100% सर्टन होते हैं कि हम वो वादा पूरा भी करेंगे. आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव. आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल हिम अबाउट द सरप्राइज. अब गोइंग टू को हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई प्लान डिस्कस कर रहे हों, यानी जब आप कोई जानबूझ के इरादा करके कोई एक्शन करने वाले हों तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे विल. जब आप कोई प्रॉमिस करेंगे किसी काम का तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे विल. और जब आप सिर्फ अपना प्लान बता रहे हों तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? गोइंग टू. ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन सवाद, यानी ये उसका प्लान है. हो सकता है उस प्लान पे वो अमल करे, हो सकता है वो उस प्लान पे अमल
ना करे। लेकिन अगर आप कहेंगे ही विल स्पेंड इज वेकेशन इन सवात, दैट मीन्स कि उसका इरादा या इंटेंशन 100% है सवात जाने की, तो वो फिर डेफिनेटली जो समर वेकेशंस हैं वो सवात में ही स्पेंड करेगा। सो इफ़ यू आर सेइंग ही इज़ गोइंग टू स्पेंड, दैट मीन्स कि ये उसका सिर्फ इरादा है। लेकिन अगर आप विल लगा देंगे तो फिर वो एक वॉलंटरी एक्शन है और ये एक प्रॉमिस है कि वो फिर लाजमी ये काम करेगा। वी आर गोइंग टू मीट ईच अदर टू नाइट एट 6 PM, ये भी एक प्लान है। अब विल और गोइंग टू जो हैं दोनों ही प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। यानी जब आप वॉलंटरी एक्शन या जो आपका प्रॉमिस था उसके लिए आप सिर्फ विल यूज़ करेंगे, गोइंग टू यूज़ नहीं करेंगे। प्लान के लिए आप सिर्फ गोइंग टू यूज़ करेंगे, विल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप प्रिडिक्शन करेंगे फ्यूचर के लिए तो उसमें आप विल भी यूज़ कर सकते हैं और गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, उससे मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पेपर में अक्सर आपको ये सेंटेंसेस आते हैं, आपको सेंटेंस दिया जाता है, ब्लैंक दी जाती है और फिर आपसे ये कहा जाता है कि चूज़ करें कि यहाँ पे विल आएगा या गोइंग टू आएगा। सो द ईयर 2008 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। द ईयर 2008 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है। सो आई होप फ्यूचर सिंपल टेंस इज क्लियर। Okay, now we will start with the next topic, that is main ideas in paragraphs। कि हम पैराग्राफ्स के अंदर, कि कितने देर से हम स्कीमिंग और स्कैनिंग पढ़ रहे थे, और स्कीमिंग के में हम क्या करते हैं, मेन आइडिया जो है पैराग्राफ्स का या किसी टेक्स्ट का वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हमने किसी पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक है या टॉपिक सेंटेंस यानी मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना हो तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So what's the big idea? Do you know how to find the big ideas in paragraphs? That is the question, whether you know it or not. एक पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका टॉपिक सेंटेंस होता है जिसके अंदर उसका मेन आइडिया डिस्क्राइब किया जाता है, फिर उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं और फिर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। अब टॉपिक ढूंढने की टिप्स क्या हैं कि सबसे पहले तो आप पहला सेंटेंस पढ़ें। यूजली टॉपिक सेंटेंस पहले सेंटेंस में होता है। सब्जेक्ट जो होते हैं सेंटेंस के वो यूजली नाउन्स होते हैं, जैसे पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। फिर आप उस वर्ड या फ्रेज को देखें जो बार बार रिपीट हो रहा है या रेफर हो रहा है पैराग्राफ के अंदर। सारी बात है, कोई मेन आइडिया होगा तब ही बार बार रिपीट हो रहा होगा। फिर सबसे आखिर में आपने ये देखना है कि व्हाट डू ऑल सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ डील विद, यानी हर जो सेंटेंस है पैराग्राफ का बेसिकली वो किस चीज़ के बारे में है या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ के बारे में मेनली बात हो रही है वही उस पैराग्राफ का मेन टॉपिक या मेन आइडिया होगा। ओके, अब अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ें तो वी कैन सी कि इसका सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस क्या है। सो लेट्स रीड एंड देन फाइंड आउट। Does watching violence on TV make people more prone to violence themselves? Obviously, TV violence has some negative effects. One study found that heavy TV watchers are more fearful of others. They try to protect themselves with guns, alarm systems, and security locks on doors. In the same study, it was found that heavy TV watchers are less upset about real life violence than are non TV watchers. All of the violence they see on TV makes them less sensitive to the real thing. A recent study also found that TV violence increases aggressive behavior in kids and makes them more likely to select toy guns rather than other kinds of toys. अब इसमें एक वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या है, वायलेंस। लेकिन पैराग्राफ वायलेंस के बारे में नहीं है। किस चीज़ के बारे में है, वॉचिंग वायलेंस ऑन टीवी के बारे में है, क्योंकि मेजॉरिटी जो सेंटेंसेस हैं वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं,
टीवी वॉचर्स से, टीवी वॉचर्स वाचिंग वायलेंस ऑन टीवी, टीवी वॉचर्स वाचिंग वायलेंस ऑन टीवी। तो बार बार जो चीज़ रिपीट हो रही है वो वायलेंस ऑन टीवी है। तो मेन जो हमारा आइडिया या टॉपिक है इस सेंटेंस का वो क्या है? इम्पैक्ट ऑफ वॉचिंग वायलेंस ऑन टीवी। वाई? बिकॉज एक तो वायलेंस का वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, फिर टीवी का वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, और फिर इन्फ्लुएंस या किस तरह से इफेक्ट होते हैं, जो देखते हैं वो क्या करते हैं, जो नहीं देखते वो क्या करते हैं, बिहेवियर पे क्या असर होता है, ये चीज़ भी बार बार रिपीट हो रही है। तो हमारा मेन आइडिया क्या है टॉपिक का? इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस ऑफ वॉचिंग वायलेंस ऑन टीवी। यस ऑब्वियसली, तो उसको भी देखने का अपना एक इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। सो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा इस पैराग्राफ से रिलेटेड इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज टीवी वायलेंस। और उस समय पता किससे चला? वायलेंस ऑन टीवी, टीवी वायलेंस, टीवी 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 वायलेंस, वायलेंस बार बार रिपीट हो रहा था इसके अंदर। अब समटाइम्स हमें डिफ़िकल्टी होती है आइडियाज़ को या टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने में टॉपिक पैराग्राफ्स के अंदर। तो वो कब होती है? एक तो उस सूरत में जब हमारा जो टॉपिक है वो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो या पहले ही पैराग्राफ के सेंटेंस में मेंशन ना हुआ हो, यानी पहला सेंटेंस जो है पैराग्राफ का उसमें टॉपिक मेंशन ना हो बल्कि कोई और बात की गई हो। दूसरा, उस वक्त हमें मुश्किल होती है टॉपिक आइडेंटिफाई करने में जब टॉपिक को रिपीट ना किया गया हो। तीसरा, उस वक्त हमें मुश्किल होती है, सॉरी, अगर हमारे जो है ना ये दोनों स्ट्रेटजीज काम ना करें, यानी टॉपिक जो है वो पहले ही सेंटेंस में मेंशन ना हुआ हो और दूसरा ये कि टॉपिक बार बार रिपीट ना हुआ हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम उन नाउन्स को पैराग्राफ में देखते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हों या जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। फिर हम ये देखते हैं कि ये सारे जो मिलते जुलते नाउन्स हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं, और अगर उनके जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते या सेम हों तो जाहिर बात है वो एक एक आइडिया से रिलेटेड होंगे। तो वो जिस एक आइडिया से वो रिलेटेड हैं फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पैराग्राफ का टॉपिक है। जैसे लेट्स सपोज इस पैराग्राफ में अगर वायलेंस का वर्ड सिर्फ एक दफ़ा मेंशन होता, आगे होता एग्रेशन, आगे होता फाइट, आगे होता टेरर, आगे होता बीटिंग। तो अब ये जो सारे वर्ड्स हैं इनमें वायलेंस रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इन सारे वर्ड्स का बेसिकली मीनिंग जो है वो मिलता जुलता है। तो इस मिलते जुलते मीनिंग से हम गेस कर सकते थे कि जो टॉपिक है वो बेसिकली वायलेंस है या एग्रेशन है। सो अगर इसी तरह टीवी का भी वर्ड अगर सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हुआ होता तो उसी तरह से हम जो है वो उसमें क्या कर सकते थे कि जो टीवी का वर्ड भी एक दफ़ा मेंशन होता, आगे होता मीडिया, आगे होता मूवीज़, फिर होता ड्रामास, फिर होता न्यूज़, फिर कोई और वर्ड। लेकिन ओवरऑल जो ओवर आर्चिंग जो चीज़ थी वो क्या होती है कि जो चीज़ें मीडिया पे प्रेजेंट हो रही हैं, तो फिर हम गेस कर सकते थे कि टॉपिक या तो टीवी से रिलेटेड है या मीडिया से रिलेटेड है। तो जो नाउन बार बार जो एक ओवरऑल जो मेन नाउन बन रहा है यानी टीवी, तो दैट मीन्स कि टॉपिक फिर टीवी से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि ड्रामा भी टीवी पे आ रहा है, न्यूज़ भी टीवी पे आ रही है, जो एडवर्टीजमेंट है वो भी टीवी पे आ रही है और बाकी की रिलेटेड चीज़ें भी टीवी पर ही आ रही हैं। तो जो मेन नाउन है यूजली फिर वही जो है वो टॉपिक भी होता है। सो सबसे पहले आप कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो ये कि जो पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट ही आपका टॉपिक हो। दूसरा ये कि जो टॉपिक है वो बार बार रिपीट हो रहा हो वो वर्ड। और तीसरा क्या है कि अगर ये दोनों स्ट्रेटजीज काम ना करें तो फिर हम ये देखते हैं कि मिलते जुलते वर्ड्स कौन से हैं और उनमें से सबसे मेन या ओवर आर्चिंग वर्ड कौन सा है, तो फिर वही हमारा टॉपिक होगा। सो आई होप ये जो गेसिंग द मीनिंग वाला है, सॉरी गेसिंग द टॉपिक और टॉपिक सेंटेंस, ये आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क अबाउट इट।
ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू पैराग्राफ राइटिंग। कि हम पैराग्राफ राइटिंग, ज़ाहिर बात है पैराग्राफ को अभी तक हम पढ़ रहे थे, उसका स्ट्रक्चर देख रहे थे। सो इफ़ वी हैव टू राइट अ पैराग्राफ आवरसेल्व्स, तो भी हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कि पहले हम एक टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट लेंगे, फिर उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं या जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो हम एक पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। और हम हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे कि एक पैराग्राफ जो है वो हमेशा सिर्फ एक टॉपिक पे बेस्ड होता है या एक आइडिया पे बेस्ड होता है। हम मल्टीपल आइडियाज़ एक पैराग्राफ में डिस्कस नहीं करते। व्हेनेवर हम न्यू आइडियाज़ डिस्कस करने लगते हैं तो हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। कभी भी एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा आइडियाज़ डिस्कस नहीं किए जाते। ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू पॉइंट, न्यू आइडिया और न्यू कॉन्सेप्ट। सो जो पैराग्राफ है वो रिमशा कौन सा वाला पॉइंट आपने दोबारा से समझना है? बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली मेंशन करें वो चीज़ जो आपको समझ नहीं आई। ज़ाहिर बात है राइटिंग का जो बेसिक यूनिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो पैराग्राफ होता है। हम आइडियाज़ को पैराग्राफ की फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उन पैराग्राफ्स के अंदर एक एक आइडिया से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम ग्रुप करते जाते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ जो है वो यूजली 6 to 12 लाइंस का या सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है जो एक टॉपिक के ऊपर होते हैं। अब एक आज जो सेंटेंस होता है वो यूजली एक ही टॉपिक के ऊपर होता है और जितने भी सेंटेंसेस हैं वो राइटर का जो मेन टॉपिक होता है या आइडिया होता है उसको ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। स्लाइड 24 में सिर्फ इतना सा है कि पैराग्राफ का जो टॉपिक होता है यूजली पहले सेंटेंस में होता है। लेट्स सपोज कि आप कोई ऐसा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जिसमें राइटर ने उसको इस तरीके से लिखा है कि पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर उसने टॉपिक मेंशन नहीं किया। लेट्स सपोज कि आप कोई ऐसा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जिसमें जो टॉपिक का जो मेन आइडिया है वो वाला वर्ड, जैसे इस पर एग्जाम्पल के पैराग्राफ में वायलेंस का वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो बार बार वायलेंस का वर्ड रिपीट नहीं कर रहा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि ओहो इसका तो कोई मेन आइडिया ही नहीं है क्योंकि वर्ड रिपीट नहीं हो रहा या पहले सेंटेंस में टॉपिक मेंशन नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? आप पहले तो ये देखेंगे कि अगर एक वर्ड्स के मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि मेन जो ओवर आर्चिंग वर्ड है वो कौन सा है। जैसे अगर टीवी का वर्ड यूज़ हुआ है, आगे ड्रामा का वर्ड आ रहा है, फिर फिल्म का वर्ड आ रहा है, फिर न्यूज़ का वर्ड आ रहा है, तो दैट मीन्स के ड्रामा, फिल्म, न्यूज़ सब टीवी पे चलते हैं, तो मेन वर्ड क्या होगा? टीवी। इसी तरह से अगर वायलेंस का वर्ड आ रहा है, फिर एग्रेशन का वर्ड आ रहा है, फिर फाइट का वर्ड आ रहा है, फिर बीटिंग का वर्ड आ रहा है, तो अगेन ओवर आर्चिंग वर्ड क्या है या मेन वर्ड क्या है? वायलेंस। तो उससे आप गैस करेंगे कि ओके फिर जो टॉपिक है वो टीवी और वायलेंस से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि आप अपनी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक है उसकी जो पहली दो स्ट्रेटजीज थी, यानी पहले सेंटेंस में टॉपिक को फाइंड करना और रिपीटेड वर्ड्स की हेल्प से टॉपिक को फाइंड करना, अगर वो स्ट्रेटजीज हेल्प नहीं करती, यानी कोई ऐसा टॉपिक आपके सामने आ गया है, ऐसा पैराग्राफ जिसमें राइटर ने पहले सेंटेंस में टॉपिक मेंशन नहीं किया या एक वर्ड को रिपीट नहीं किया, तो फिर आप जो अगली दो स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज़ करेंगे। यानी आप जनरलाइज टर्म्स को देखेंगे या मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स को देखेंगे और उनसे अपना जो मेन टॉपिक है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर आ गया पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग जो है उसमें पैराग्राफ किसी भी एस्से हो, चैप्टर हो, बुक हो, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है उसको जब हम लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में हमेशा सिर्फ एक आइडिया डिस्कस किया जाता है। यूजली हमारा जो मेन आइडिया होता है उसको हम पहले ही सेंटेंस में, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, उसमें मेंशन कर देते हैं और बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली उस मेन आइडिया को ही सपोर्ट करते हैं।
सो आई होप रिमशा आपको अब क्लियर हो गया है ये पॉइंट। रिमशा, इज इट क्लियर? गुड। Okay, so let's move on to the next point, that is what is a paragraph. Definition क्या है पैराग्राफ की? तो पैराग्राफ जो है वो 6 to 12 sentences का एक ग्रुप होता है जो एक टॉपिक के ऊपर होते हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस होते हैं। राइटर का जो एक मेन आइडिया होता है उस टॉपिक, उस पैराग्राफ का, उससे रिलेटेड या उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। और जो पैराग्राफ है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उस पैराग्राफ के अंदर आप ओपिनियन इंक्लूड कर सकते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवन कोई शॉर्ट स्टोरी भी बता सकते हैं। जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर एक लॉजिक वाइज रीज़न या कनेक्शन होना चाहिए, ताकि रीडर जो है वो उनको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके कि राइटर कहना क्या चाह रहा है। अब जो एकेडमिक राइटिंग्स होती हैं, यानी जो आपकी बुक्स होती हैं, जो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं, एसेस लिखते हैं या थीसिस या रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनमें हमेशा पैराग्राफ जो है वो एक टॉपिक सेंटेंस, उसका एक टॉपिक सेंटेंस लाजमी होता है जो आपको डायरेक्टली बताता है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। और जो बाकी के जितने सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली उस मेन आइडिया की सपोर्ट में लिखे जाते हैं, यानी वो उस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स बताते हैं, एक्सप्लेनेशंस ऐड करते हैं या एग्जांपल्स देते हैं। यूजली इंग्लिश में जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो पैराग्राफ का फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस हो, समटाइम्स वो मिडल में भी आ सकता है। अब स्टैंडर्ड पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और फिर उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस। बेटा, आप लोगों में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस नहीं है कि आप कहाँ मैसेज कर रहे हैं, कौन से मैसेज कर रहे हैं और उनको कौन कौन देख रहा है? अब टॉपिक सेंटेंस को आप एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पे भी ले सकते हैं कि जो ओवर आर्चिंग टर्म होती है जिसके नीचे बाकी सारी सपोर्टिंग डिटेल्स आ जाती हैं। जो बाकी सारे सेंटेंसेस होते हैं वो उसी मेन आइडिया को कवर करते हैं, उसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्लियरली स्टेट करना होना चाहिए, यानी उसके अंदर मेन पॉइंट क्लियरली आना चाहिए। उसमें जो है वो आप कुछ शो करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ प्रूफ करते हैं। उसमें आपने स्पेसिफिक रहना होता है, उसमें आपने रीडर को प्रिपेयर करना होता है कि आगे पैराग्राफ में उसे क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। टॉपिक सेंटेंस में थॉट कंप्लीट होनी चाहिए, हुदूरी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ कंप्लीट थॉट। फिर कंट्रोल या गाइड करता है ये पूरे पैराग्राफ्स को। टॉपिक सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ अ paragraph. A good topic sentence consists of 2 parts, topic or controlling idea. Like Turkish cuisine appeals to everybody. So हमारा जो टॉपिक है वो टर्किश क्विजीन है और कंट्रोलिंग आइडिया क्या है? अपील्स टू एवरीबॉडी, यानी सबको अच्छी लगती है। अब जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहले तो उनको वेल डेवलप्ड होना चाहिए ताकि वो टॉपिक सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। उनके अंदर कंक्रीट डिटेल्स होनी चाहिए, यानी डाटा, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, एविडेंस, डिटेल्स। फिर एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत लाइवली होनी चाहिए, इलस्ट्रेशंस, यानी अगर कोई मतलब अगर आप कोई पिक्चरिस्क डिटेल्स देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शंस के थ्रू तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेल डेवलप्ड होना चाहिए। सपोर्टिंग सेंटेंसेस को क्लियरली वर्डेड होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस वर्डिंग नहीं होनी चाहिए।
अब किस किस तरह के सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, ज़ाहिर जितनी टाइप्स के एसेज या जितनी टाइप के पैराग्राफ्स होते हैं उतनी टाइप के आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. Sentences can explain, they can describe, they can give reasons, they can give facts, they can give examples, and they can also define. Okay, अब ये एक सैम्पल पैराग्राफ है जिसके अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है वो हाईलाइट कर दिया गया है. The high cost of college causes many problems for students today. तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि मेन आइडिया क्या है कि कॉलेज की जो कॉस्ट है या जो एक्सपेंसेस हैं वो हाई हैं और उससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं. अब साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए डिटेल्स आ गई. तो Keer, I have told you many times, all of you, that we will discuss assignments tomorrow. For one thing, it keeps some students from attending college in the first place. तो पहला इशू क्या होता है, हाई कॉस्ट ऑफ कॉलेज का, कि कुछ स्टूडेंट्स अटेंड ही नहीं कर पाते. ऑल्सो हाई ट्यूशन इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर स्टडी. Second drawback, because loans and scholarships are not easy to get, many students have to put in numerous hours at work in order to afford an education. अब ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 3 की ही फर्दर एक्सप्लेनेशन है. Finally, those who do manage to get loans know they must begin their careers with large debts. Again, further explanation. तो सारे आइडियाज़ एक ही सेंट्रल आइडिया के गिर्द घूम रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. Read the paragraph carefully, note the topic, और फिर इस बात पे गौर करें कि हमें कैसे पता चल रहा है कि जो मेन रेड में हाईलाइट हुआ सेंटेंस है, डेट मीन्स कर्जा, उधार, वही हमारा टॉपिक सेंटेंस है. So that was our unit 6.